Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 12th Commerce OCM, we'll be starting with a new chapter, that is chapter number 7, controlling. Before starting this chapter, let us see what we are going to learn in this chapter. Students, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग की मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर से, उस चैप्टर में हमने 5 स्टेजेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. Then we discussed about principle of management in chapter number 2. Then chapter number 3, 4, 5 and 6 are the first 4 steps of process of management. जो process of management के हमने 5 step पढ़ी थी, उसमें से first step was planning, that is chapter number 3. Second was organizing, chapter number 4. Third was staffing, chapter number 5. Fourth was directing, chapter number 6. And the last step for the process of management is controlling, which is chapter number 7. After finishing this chapter, we can say that the first part of your 12 commerce OCM is completed, because the first part है वो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड 5 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद का OCM का थोड़ा बेस अलग है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम चैप्टर में. फर्स्ट विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, then controlling, meaning of controlling, characteristics and importance. And this is then we'll read about the important topic, relation between planning and controlling, and then stages of controlling process. छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है. और इस चैप्टर की बात करें तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. एक रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और एक है स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. तो चलो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से. A business unit enterprise is established for the achievement of specific objectives. Objectives can be for long term or short term. For the achievement of these objectives, various activities are planned. In order to implement these plans, an organization is established. But however perfectly or carefully planning may be done on, or an ideal organization may be established, many obstacles may arise while implementing the plans. देखिए तो क्या पढ़ा हमने अभी तक कि भैया कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी बिजनेस फर्म, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम प्लान्स बनाते हैं प्लानिंग के अंदर, और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं. ओके, तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग क्या है, और जो प्लान हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसमें कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है. तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग is to remove these obstacles and to see that the work is performed exactly in conformity with the plan. तो भैया कंट्रोलिंग का फंक्शन ये है कि जो प्लान्स हमने बनाए थे, जो प्लान्स हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो एज पर प्लान पूरा प्रोसेस चल रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो उसमें थोड़े से करेक्टिव मेजर्स लाके भैया उसको एज पर प्लान करें. ओके, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टाफ to find out deviation and remove the deviation by necessary corrective measures for implementation of plan. तो कंट्रोलिंग क्या है, जो स्टाफ है उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, अगर कोई डेविएशन आ रहा है तो वो डेविएशन करेक्टिव मेजर्स को यूज करके रिमूव करना. क्लियर, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंट्रोलिंग. In the order of management process, planning is the first step and controlling is the last step. Activities are planned and after that duties and responsibilities are assigned. In this way, from the time that the work begins, the function of controlling also begins. The function of controlling is to check the process of managerial tasks, compare the same with set standard through plans and to find out deviation thereof. तो जो डिस्कस किया हमने वही कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है कि जो प्रोग्रेस है वो चेक करना, जो सेट स्टैंडर्ड से जो बेंचमार्क है उससे मैच करना, अगर डेविएशन आ रहे हैं तो उसको सही करना. फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सच डेविएशन, रिमूव देन एंड टेक करेक्टिव एक्शंस. ओके, नाउ लेट अस सी द मीनिंग. In ordinary sense, controlling means to decide the activities to be carried out, evaluate the same, and if required, take corrective measures so that they are done in conformity with the plan. तो क्या है कि एक्टिविटीज कैसे होगी वो ध्यान रखना, इवेल्युएट करना, और जरूरत पड़े तो उसको करेक्टिव मेजर से यूज करके
एज पर प्लान ऑर्गेनाइज कराना, एज पर प्लान कंफर्म कराना। क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग डिटरमाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रोलिंग मेक देम इफेक्टिव। प्लानिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करती है और कंट्रोलिंग जो है वो उसको इफेक्टिव बनाती है। और हेनरी फेयल के हिसाब से क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ एन अंडरटेकिंग कंसिस्ट ऑफ एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज बीइंग कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान which has been adopted, the orders which have been given and the principles which have been laid down. Its objective is to point out the mistake in order that they may be rectified and prevented from recurring. तो हेनरी फेयल के हिसाब से कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग एक अंडरटेकिंग है जिसमें आप इंश्योर करते हो कि सारी चीजें एज पर प्लान जो हमने अडॉप्ट किया उसके अकॉर्डिंग चल रही है, या जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए, जो रेगुलेशंस बनाए उसके अकॉर्डिंग चल रही है। और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना, उसको रेक्टिफाई करना और ध्यान रखना कि ये दोबारा ना हो। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल अफेक्ट्स थिंग्स, पीपल एंड फंक्शन एंड ऑल अदर फैक्टर्स। और दिस डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें लिखनी है, कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स, रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम मीनिंग के साथ लिख सकते हैं। ओके, द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट फंक्शंस आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो कंट्रोलिंग हमें सबको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू प्लानिंग। हमने स्टार्टिंग में देख लिया, प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है, कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है। कंट्रोल क्या करना है कि जो प्लान बनाया तो उसके हिसाब से कंट्रोल करना है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। प्लानिंग परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मेकिंग प्लान while controlling ensures that activity are carried out. मीन्स प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं कि ये करना है, लेकिन कंट्रोलिंग के वो जवाबदारी रहती है, वो एंश्योरिटी करती है कि वो एक्टिविटीज एक्चुअल में हो रही हो। ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर लाइक ट्विंस। कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लान। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारा प्लान क्या है तो हम क्या कंट्रोल करेंगे? तो कंट्रोलिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। नेक्स्ट इज फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है, प्लानिंग करोगे तो भी कंट्रोल करोगे, स्टाफिंग को भी कंट्रोल करना है, डायरेक्शन को भी कंट्रोल करना है, ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रोल करना है। तो कह सकते हैं फंक्शन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल भी कंट्रोल करेगा, मिडिल लेवल भी कंट्रोल करेगा कहीं ना कहीं, बॉटम लेवल भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा सबको। ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। It is wrong to think that once control is exercised on the activities of the enterprise, work will always be done according to plan. By keeping constant supervision over the activities of the personnel, constant effort must be made to remove deviation. Quality control and cost control are important and constant activities. तो क्या है, आप अगर ये सोचे कि मैंने एक बार किसी को कंट्रोल कर लिया, उसको सुधार दिया तो वो हमेशा सही होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कंट्रोलिंग हमें क्या है, कांस्टेंट करनी पड़ेगी। हमें कंट्रोलिंग कांस्टेंट करनी पड़ती है, फिर वो क्वालिटी कंट्रोल हो, कॉस्ट कंट्रोल हो, या कोई भी कंट्रोल हो, पर्सनल कंट्रोल हो, हमें कॉन्स्टेंटली उसको कंटिन्यूसली करना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। इन द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंट देम, डायरेक्टिंग गिव डायरेक्शन एंड द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बिगन्स। पहले प्लान बनेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई, फिर स्टाफ एम्प्लॉयज अपॉइंट हुए, फिर डायरेक्शन से उसको डायरेक्ट किया गया, फिर कंट्रोलिंग का काम आता है, फिर कंट्रोलिंग फंक्शन स्टार्ट होता है। सो इट इज एसेंशियल दैट मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बिफोर कंट्रोल इज exercise. The function of controlling is that of regulating, which begins only after the activities get initiated. भाई activities start होगी उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। That is why it is called that controlling is an end activity of management. Next is related to future. Controlling is related to future. The manager has no control over past activities, but he can examine past activities and analyze them so that he can take benefit in the future. अब controlling क्या है कि हम
शुद्ध हिंदी में बोले या समझने वाली हिंदी में बोले तो भैया गलतियों को सुधारना। अब जो गलतियां पास्ट में हो गई हम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम क्यों सुधार रहे हैं उसको, कि फ्यूचर में गलती ना हो। ओके, सो हम पास्ट की एक्टिविटीज को एग्जामिन करके उसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना चाहते हैं। ओके, so that is why it is related to future. Objective of control is to see that errors, wastage, losses which occurred in the past are not repeated. जो गलतियां, जो भूल, जो वेस्ट हमारा पास्ट में हुआ है वो रिपीट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग को जनरली क्या कहते हैं, वर्कर्स या एम्प्लॉयज जो बोलते हैं उसको एज एन अटैक ऑन वर्कर्स रिगार्ड करते हैं कि भाई वर्कर की फ्रीडम नहीं रही, कोई कंट्रोल कर रहा है तो एम्प्लॉयज की फ्रीडम नहीं रही, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कंट्रोलिंग का फंक्शन देखें तो अगर जो वर्कर उसको जो अलॉटेड काम है, अलॉटेड वर्क दिया उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसके ऊपर कोई अटैक नहीं है। ओके, तो ये नेगेटिव नहीं है, इट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग क्या करती है, मिस्टेक्स जो होती है, गलतियां जो होती है उसको रेक्टिफाई करती है और ध्यान रखती है कि जो मिस्टेक्स है वो रिपीट ना हो। ओके, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज बोलते हैं। Controlling rectifies mistakes and takes steps to ensure that mistakes are not repeated. Thus, it is a constructive activity. Clear? Next is internal process. अब आप कंट्रोल किसे करोगे, तो भैया हम हमारे बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम किसी क्रेडिटर या डेटर को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। किसी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। तो जब हम सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोलिंग क्या हुआ, इंटरनल प्रोसेस। ओके, इंटरनल प्रोसेस कैसे करें, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल अकाउंट, वर्किंग मेथड ऑफ एम्प्लॉयज, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट पॉलिसी, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन साइकोलॉजी ऑफ पीपल, ये सब हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए कंट्रोलिंग इज अ इंटरनल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मींस, व्हाई इट इज डायनेमिक प्रोसेस, कि भैया प्रोसेस जो है कंट्रोलिंग का वो प्लानिंग से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू प्लानिंग। सो इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बेस्ड ऑन प्लानिंग एंड फोरसाइट। प्लानिंग और जो फ्यूचर्स फोरसाइटेडनेस है उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, तो अगर गोल ऑफ प्लानिंग चेंज होता है तो कंट्रोलिंग भी चेंज हो जाएगी। सो द गोल्स ऑफ प्लानिंग चेंज एंड अकॉर्डिंगली फास्ट चेंजेस आर मेड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। तो कंट्रोलिंग, बेसिकली कंट्रोलिंग किसके लिए होता है, तो भैया एम्प्लॉयज के बेटरमेंट के लिए, वर्कर्स की इफेक्टिव बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सो देखते हैं क्या कहता है, इट इज डन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वर्कर बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स। इंप्रूवमेंट के लिए होता है, डन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर, improvement of worker. Clear? So the person is the center of controlling exercised on workers by workers. Controlling is exercised on workers by workers. Every activity is performed ultimately by the person. The errors or deviation are also due to human weaknesses. That is why we can say that controlling is very much person oriented or subjective. इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया वर्कर्स के इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, वर्कर के ऊपर होता है, वर्कर मतलब मैनेजर वर्कर ही है फर्म का, बिजनेस का वर्कर ही करते हैं, उनके वर्कर्स की जो वीकनेसेस है उसको ओवरकम करने के लिए होता है। तो कह सकते हैं ना कि पर्सन ऑब्जेक्टिव या पर्सन ओरिएंटेड या सब्जेक्टिव एक्टिविटी है। ओके, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कंट्रोल प्रोसेस फॉर्मली है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंट्रोल फॉर्मली। लेकिन अगर टाइम जैसे जैसे पास ऑन हुआ तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हमारा रिलेशन हमारे बॉस के साथ या बॉस का रिलेशन कुछ एम्प्लॉयज के साथ अच्छा है तो वो उसको इनफॉर्मली भी आफ्टर ऑफिस आवर्स समझा देते कि यार ऐसा मत करा करो, इससे प्रॉब्लम होती है, तुम्हें भी प्रॉब्लम होगी, कंपनी को भी प्रॉब्लम होगी। हमने बहुत बार देखा है। ओके, सो विद दिस वी कैन से दैट कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लियर?
So this is all for today's session. Hope you guys understand. If you are having any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.